Hello students, welcome back to Winsome Digital Learning Platform of Winsome International School. आज हम SOF की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम क्लास 2 का चैप्टर 2 लेंगे, दैट इज प्रोनाउंस. आपने नाउन्स पढ़ लिए हैं, अब हम प्रोनाउंस को समझेंगे और देखेंगे प्रोनाउंस क्या होते हैं. नाउ लेट अस डू वन ब्रेन एक्सरसाइज. एक हम थोड़ा दिमाग से ये पैसेज पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या कमियां हैं. हमें कुछ कमियां लगेंगी इस पैसेज में. When we will read this passage, there are some errors or we can rectify these errors by some words. Let's start. Ankita is in class 2. There is a girl whose name is Ankita. She is in class 2. Ankita has a balloon. Ankita के पास क्या है? बलून है. The balloon is blue. बलून उसका ब्लू कलर का है. Ankita looks happy. She is happy with her balloon. Ankita bought the balloon with Ankita's pocket money. Ankita ने वो बलून अंकिता की पॉकेट मनी से लिया. So many times Ankita balloon. Oh my God. बोल्ड वर्ड्स आर नाउन्स. जो वर्ड्स बोल्ड किए गए हैं वो नाउन्स है. मैंने पिछले टाइम आपको बताया था किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नेम को हम नाउन्स कहते हैं. सो इनमें जो भी वर्ड्स अंडरलाइन बोल्ड है वो नाउन्स है. इन द गिवन पैसेज द नाउन्स आर यूज मेनी टाइम्स. अब इस पैसेज में नाउन को बहुत बार यूज किया गया है. So many times the noun is used. To stop the repetition of noun, we use pronoun. अब हम बार बार अंकिता का नाम ना लेके हम इसकी जगह कुछ वर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं और उनको हम प्रोनाउंस कहेंगे. क्या कहेंगे? प्रोनाउंस. क्योंकि बार बार अंकिता so many times if we repeat, if repetition is there, the passage is not looking good. So let us see what can be done. हम इन अंकिता की जगह कौन से वर्ड्स को, बलून की जगह पे कौन से प्रोनाउंस, नॉट वर्ड्स, इट्स एक्चुअली प्रोनाउन, कौन से प्रोनाउंस को हम फिट करेंगे जिससे ये पैसेज विल बिकम मोर अट्रैक्टिव एंड गुड टू रीड. अंकिता इज इन क्लास 2. अंकिता क्लास 2 में है. यहां तो अंकिता नेम आएगा बिकॉज यू हैव टू टेल हु इज इन क्लास 2. She has balloons. अब हम इसकी जगह she यूज कर सकते हैं. She has balloons. उसके पास balloons है. It is blue. अब balloon नॉन लिविंग थिंग है, हम it यूज करेंगे. It is blue. She looks happy. क्योंकि वो गर्ल है, हम जब भी गर्ल को किसी वर्ड से रिप्लेस करते हैं तो वो वर्ड होता है she. We use she for girls. She bought it with her pocket money. वो अपनी पॉकेट मनी से उसको लेके आई. और यहाँ अंकिता की जगह she bought it with she pocket money नहीं, her, उसकी जगह क्या यूज होगा? her. With her pocket money. वो उसको अपनी पॉकेट मनी से लेके आए. So can you see? Ankita has been replaced by she and balloon has been replaced by it. Now pronouns. What are pronouns? अब हम pronouns को अच्छे से समझते हैं. क्या होते हैं? Few pronouns are he, she, it, you, we, they, her, his, him, them, us, etc. Pronouns are the words used in the place of nouns. हम nouns का बार बार repetition ना हो, बार बार हम nouns को use ना करें, इसलिए हम pronouns को use करते हैं. We use pronoun more frequently than nouns because कई बार आपका passage बार बार noun यूज करने से अट्रैक्टिव और अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए we use pronouns. And some example of pronouns are he, she, it, they, we, you, us, his, him, her. Pronouns are used in place of nouns to avoid the repetition of words in the sentence. बार बार repetition होता है noun का तो अच्छा नहीं लगता है. Instead of repeating those words, we use noun. बार बार noun का repetition किसी भी sentence में अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए we use pronouns. Pronoun used for males. अब ये चीज आपको दिमाग में बिठा लेनी है. जब भी हम किसी मेल की बात करेंगे तो हम he, his, him ये 3 वर्ड्स का यूज करेंगे. What are these 3 words? He, his, him.
he is my brother, he is my brother, ये मेरा ब्रदर है. his hairs are curly, his hair is curly, उसके hair कैसे हैं? curly, his hair is curly. I am going with him, मैं उसके साथ जा रही हूं. I am going with him. So these are the example of pronoun males. Now pronoun used for female, she, her. Okay, she is my friend. Her friend is Sita, उसकी friend Sita है. Okay. Now pronoun used for both male and females. अब कुछ ऐसे pronoun होते हैं जो हम दोनों के लिए यूज करते हैं, मेल के लिए भी यूज करते हैं, फीमेल. I am a woman. Me, she is going with me. She is going for a shopping with me, मेरे साथ. You, we, us, they, them. Okay, ये हम मेल्स फीमेल दोनों के लिए यूज करते हैं. दे आर माई फ्रेंड्स, वी आर गोइंग विद देम, हम उनके साथ जा रहे हैं. यू आर माई फ्रेंड, वी थ्री आर सिटिंग टुगेदर. लेट शी इज गोइंग विद us to the market, वो हमारे साथ जा रही है. तो मेल फीमेल दोनों के लिए हम इनको यूज करेंगे. प्रोनाउन यूज फॉर एनिमल्स एंड थिंग, जब भी एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग की बात होगी तो हमेशा हम उनके साथ जब वन होंगे, ओनली वन, वी विल यूज इट, IT, इट. हमेशा एनिमल, वन एनिमल एंड ओनली वन नॉन लिविंग थिंग, वी यूज इट. Singular pronoun are I, he, she, it, him, his, me, her. जब सिंगुलर की बात होती है तो उनमें क्या आते हैं सिंगुलर प्रोनाउन में? I. That is used for ourselves. He बॉय के लिए यूज होता है. She गर्ल के लिए. It एनिमल के लिए. Him बॉय के लिए. His बॉय के लिए. Her गर्ल के लिए. Me अपने लिए. Plural, we, they, them, us. We, you, they, them, us. We. आप जिस भी ग्रुप में होंगे उसको हम वी कहते हैं. जैसे मैं बहुत अच्छा से एग्जाम्पल बताऊंगी आपको. मैं अपनी दो फ्रेंड्स के साथ मूवी जा रही हूं तो मैं ये नहीं कहूंगी दे आर गोइंग टू द मूवी. आई विल से वी आर गोइंग टू द मूवी. जब भी जिस ग्रुप में आप होगे, दे और वी में क्या फर्क होता है बेटा? जब भी जिस ग्रुप में आप होगे मीन्स योर प्रेजेंस इज नेसेसरी, योर प्रेजेंस इज कंपल्सरी, देन इट विल कम, वी विल यूज वी. तब हम वहां पे वी यूज करेंगे क्योंकि आप उस ग्रुप में मौजूद हो, इसलिए वी यूज होता है. जब भी जिस ग्रुप में आप हो वहां वी यूज होता है. दे किसी दूसरे ग्रुप के लिए हम दे यूज करते हैं. देम भी किसी और के लिए हम यूज करते हैं. अस हम सब. ओके, सो नाउ प्रोनाउन you, him, they, her, I, me, she, them, he. These all are pronouns. Olympiad, by pronoun you is used for both singular and plural, male and female. You बेटा वन के you are my friend, मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूं तो मैं कहूंगी you are my friend, तुम मेरे फ्रेंड हो. और अगर मैं क्लास में पढ़ा रही हूं you all are my students, तो you प्रोनाउन सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, प्लूरल के लिए भी यूज होता है. इसलिए you के साथ कभी is नहीं आता, हमेशा are आता है. we never use is, we always use are. You are my friend, you all are my students, you all are going to the picnic. So it is always used with singular also and plural also, male, female, इसमें कोई मैटर नहीं करता, ये सबके साथ यूज होता है. You can fit you with any pronoun. Now self test. Direction 1, question 1 to 5. Choose the correct pronoun to replace the bold noun. Amar. अमर हैड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक. अमर एक लड़का है, उसके लिए आप क्या यूज करोगे? ही, शी, इट, दे तो बिल्कुल नहीं यूज होगा, वो वन है. वो एनिमल या नॉन लिविंग थिंग नहीं है तो इट भी हट जाएगा, यू विल एलिमिनेट इट. शी तो बिल्कुल नहीं, ही इज द करेक्ट आंसर. अमर इज अ बॉय सो यू विल यूज ही हैड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. मिस्टर शर्मा टुक द गर्ल होम. गर्ल के लिए आप क्या यूज करोगे? मिस्टर शर्मा टुक द गर्ल होम.
शी, ही, हिज, हर। शी तो बिल्कुल नहीं यूज होगा, ही भी नहीं यूज होगा, हिज भी नहीं यूज होगा, हर। यहाँ पे हर यूज होगा, उसे। यहाँ पे शी क्यों नहीं यूज हुआ घर के लिए? क्योंकि मिस्टर शर्मा टुक हर होम, उसे के लिए, और वो लड़की है, ऑब्वियसली उसे के लिए हम यूज करेंगे हर। गीता एंड श्यामा आर गुड फ्रेंड्स। अब दो लोगों की बात हो रही है बेटा। शी एक के लिए यूज होता है, वी आप नहीं हो उस ग्रुप में, जब भी जिस ग्रुप में आप होगे वहां वी यूज होता है, देन भी नहीं होगा, दे आर द राइट आंसर। एक से ज्यादा है, so you will use plural pronoun and they is the correct answer for this question. They are good players. Option B is the correct answer. The cow moved all night. Cow के लिए क्या यूज होगा? She, he, नहीं, हमेशा एनिमल के साथ it यूज होता है. They is also wrong answer. With non-living things and animals you always use it. So option C is the correct answer. शीना स्कोल्डेड सरिता, सैम एंड जया। सीता ने इन तीनों को स्कोल्ड किया। इन तीनों के लिए क्या यूज होगा? हर एक लिए यूज होता है, हर गर्ल के लिए यूज होता है, एंड फॉर वन, हिम फॉर बॉय ओनली वन। शीना स्कोल्डेड दे, नो, देम, उन्हें, देम उन्हें स्कोल्ड किया। शीमा स्कोल्डेड देम, शीना ने उन्हें स्कोल्ड किया। सो यू विल यूज देम, यू विल नॉट यूज दे, यू विल यूज देम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ दिस दैट दीज दोज, आपने क्लास 1 में ये टॉपिक जरूर कवर किया होगा। दिस दैट दीज दोज, बेटा कब जब भी कोई एक चीज, एग्जाम्पल एप्पल है मेरे हाथ में, मेरे पास है, तो दिस इज एन एप्पल। एप्पल मुझसे दूर है, एक एप्पल दूर है, एक एप्पल पास में है, दिस होगा, एक एप्पल दूर पे है, दैट होगा। बहुत सारे एप्पल आपके पास में है, दीज, और बहुत सारे एप्पल आपके दूर पे हैं आपसे, तो दोज। तो ये कॉन्सेप्ट होता है दीज। Some other pronouns are this, that, these and those. कुछ pronouns होते हैं this, that, these, those भी pronoun की कैटेगरी में आते हैं। These pronouns are used to talk about object or objects. अब कई बार जरूरी नहीं है किसी इंसान की बात हो, ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स की भी बात हो सकती है। तो या तो वो चीज हमारे पास होती है, या तो वो चीज हमसे दूर होती है, या बहुत दूर होती है। पास दूर, कोई ऑब्जेक्ट पास हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट दूर हो सकता है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पास में हो सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दूर पे हो सकते हैं। दैट आर ईदर क्लोज और फार फ्रॉम द स्पीकर। अब मैं स्पीकर हूं, मुझसे हो सकता है एप्पल्स बहुत दूर में रखी हो सकता है एप्पल्स पास में रखो, एक एप्पल पास में रखा हो, एक एप्पल दूर पे रखा हो। सो वी हैव टू यूज प्रोनाउन इन दैट केस। दे शो वेयर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस। इससे हमें पता चलता है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, पास रखा है या दूर रखा है, नियर और फार। Singular pronoun that shows an object near to the speaker is this. मैंने बताया अगर स्पीकर के पास में एक चीज पास में है, एक चीज, ये आपको समझना होगा this और these में क्या फर्क होता है। एक चीज जब पास में होती है तो हम उसके लिए this यूज करते हैं। one thing जब पास में होगी, one thing near, you will use this. Singular pronoun that shows the object far from the speaker. One thing if it is फार, जब एक थिंग फार में होगी, दैट इज अ एप्पल। एक चीज, बेटा ये कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए, दिस दैट वन थिंग के लिए लगता है। अगर वन थिंग नियर है, पास में, यू विल यूज दिस। वन चीज, अगर वन थिंग इफ इट इज फार फ्रॉम यू, यू विल यूज दैट। यू कैन नोट इट इन योर नोटबुक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कई बार क्लियर नहीं होता है, आप अपने सेंटेंसेस फ्रेम करने में ये गलतियां कर देते हैं। वन थिंग इफ इट इज नियर यू विल यूज दिस, वन थिंग इफ इट इज फार यू विल यूज दैट। These and those, plural noun that shows object near to the speaker. अब मेरे पास बहुत सारे एप्पल्स हैं, कैन यू सी? these नियर होंगे और बहुत सारे होंगे। दीज आर एप्पल्स, दिख रहे हैं आपको? 2 एप्पल्स हैं और पास में है। जब 2 एप्पल्स या 10 एप्पल्स, 20, 50, 100 एप्पल्स आपके पास में है, सो यू विल यूज दीज। मैनी थिंग्स नियर, मैनी थिंग्स नियर, और दोज मैनी थिंग्स
many things far. Plural pronoun that shows object far from the speaker. अगर far है बहुत सारी चीज, can you see those? far है बहुत, 2 एप्पल है या बहुत सारे, यहाँ 100 भी हो सकता है, 200 भी, 10, 20, 30, 40, 50, those are apples. तो this that one thing के साथ लगता है, these those more than one, एक से ज्यादा, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 10, 100, 200, 300, 500, 1000. You will always use with many things. More than one means many things. Many things you will always use near, if it is near, many thing if it is near, you will use these, and many thing if it is far, you will use those. Now, Olympiad bite, this and that take is, वो एक है, this that हमेशा one के साथ यूज होता है, इसलिए हम उसके साथ हमेशा is यूज करेंगे. We will always use is with it. Okay? These those take are, these those क्योंकि many है, more than one है, we will always use are with it. हम कभी उसके साथ are नहीं. Those are apples. These are my friends. So you will always use are क्योंकि एक से ज्यादा के साथ हम हमेशा are use करते हैं. A-R-E, are. This, that, these and those can point at one or more than one thing. This, that, one thing के लिए, these, those, more than one thing के लिए. Now we have come on next. This self-test 2. This is self-test 2. Direction question 1 to 5. Choose the correct option to fill in the blanks. Okay. The first one is dash is my wallet in my hand. अब wallet के लिए आप क्या यूज करोगे? That hand पास में होता है. Can you see my hand? Yes, पास में है. These wallet 1 है. Wallet is 1. Those दूर नहीं है तो those नहीं आएगा. That दूर नहीं है तो that नहीं आ सकता. बहुत सारा नहीं है. It is 1. You will use this. This is my wallet in my hand. Number 2. Dash are my friends with me. This, no. 1 के लिए friends is more than 1. Friends मतलब more than 1. तो this तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि this 1 के साथ यूज होता है. Those दूर नहीं है, वो बता रही है dash are my friends with me, मेरे साथ है. सोचिए यहाँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स खड़े हैं. That 1 के लिए यूज होता है. These are my friends with me, मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त खड़े हैं और मैं आपसे उनको इंट्रोड्यूस कराऊं. तो पास में with me मेरे साथ ही होंगे. So you will use these क्योंकि एक से ज्यादा के लिए हम these यूज करते हैं और पास है. Okay, with me it means they are standing. You have to assume that they are standing with me. That is why I have used these. Option B is the correct answer. Dash boys over there are my cousin. Over there. ये obviously दूर की बात हो रही है. तो that आएगा? No. भले ही दूर होता है that, but 1 के लिए यूज होता है. This, no. This, these पहले ही हट गया क्योंकि पास के लिए यूज होता है. That 1. Those boys क्योंकि यहां more than 1 की बात हो रही है. More than 1, एक से ज्यादा की बात हो रही है. So those boys, 1 boy की बात नहीं हो रही है, more than 1 boy की बात हो रही है. Those boys over there are my cousins. सब जगह S लगा है. So option 1A is the correct answer. Dash is my pet parrot over there. Dash is my pet parrot over there. Parrot, हम parrot के लिए क्या यूज करेंगे? This, no. That, no. These, no. बहुत सारे नहीं है. Those बहुत सारे नहीं. These those तो ऐसे ही निकल गया. 1 के लिए हम या तो this यूज करते हैं या तो that यूज करते हैं. Over there, अब हम देखेंगे over there. Over there मतलब दूर पे. So that is the correct option. That is my pet parrot over there. Over there थोड़ा सा आपसे दूर है. That is why you will use that. Dash books in my bag are mine. Books more than 1. More
than 1, एक से ज्यादा के लिए यूज हो रहा है. Those, no, those books in my bag are mine. बैग मेरे पास ही है. This एक के लिए यूज होता है तो ये तो पहले ही कट गया. दैट भी एलिमिनेट हो गया, दिस भी एलिमिनेट हो गया. दोज दूर नहीं है. These books in my bag are mine. These books in my bag. बैग पास में है, उसमें जो बुक्स है वो मेरी है. That is why option D is the correct answer. That is these. So today till here we have covered. We will do Olympiad exercises in the next class. Till then, keep preparing, keep learning. Stay tuned with Winsome Digital Learning Platform of Winsome International School. We will meet soon in the next class. Bye students.